Yes. So as we know, sir, that hydrogen is one such element in the periodic table which has got no place. That means it has got no group, it has got no period in the periodic table. So that is why the study of hydrogen becomes a little mysterious, and it also has some twists and turns in its story. So let us try to have a look at it. If you see one element which is abundant throughout this universe, not only in this world, not only on this earth, rather than throughout the universe, if any element is in abundance, then that is nothing but our hydrogen. We all know that all the distant stars out there are nothing but made up of giant balls of hydrogen gas, right? So they are having a lot of nuclear radioactive reactions happening over there, nuclear fusion reactions taking place, where hydrogen is getting converted into helium and hydrogen is disintegrating into protons and other particles, right? So in this way, what we are trying to tell you people here is hydrogen is the most abundant element in the universe. We are not talking on earth, and the third most abundant element on earth's surface, because hydrogen exists in the form of water. So in water, we are having hydrogen, and as well as in the atmosphere, we are having hydrogen. So taking all together, we have it as the third most abundant element in our universe. Now, hydrogen has a very simple structure. We all know this, right? Hydrogen has got one proton in its nucleus, okay, and one electron, okay. Hydrogen can exist in three different isotopic forms. It can either exist as protium, it can exist as deuterium, or it can exist as tritium. So generally, one misconception which people have, or generally what mistake people do, is this. They think protium hydrogen 1 1, okay, to be nothing but hydrogen 1 1. People assume this to be having one neutron, but you have to be very careful over here. Number of protons is 1, number of electrons is 1, but number of neutrons in this case is 0, anda, right? So there are no neutrons in case of our protium, okay. We have deuterium, which is 1 2. Here we have one neutron, one proton, and one electron. And then we have tritium, okay, where we are having two neutrons, okay, one proton and as well as one electron. Now here, the beautiful thing over here is tritium is radioactive. As tritium is radioactive, you must be knowing this, sir. Inside a nucleus, if the N by P ratio, okay, depending on the N by P ratio, you see here, such a small nucleus of hydrogen, and it is becoming heavy because we are having two neutrons, one proton inside it. In case of your tritium, obviously it is becoming radioactive and it starts disintegrating. So that is why, as tritium is a radioactive element, obviously its abundance is the least. Among all the three isotopes, if you want to find the percentage of tritium, then it will have the least contribution. So that is why tritium will be found in a very, very minor quantity or in a negligible quantity. हम लोगों को tritium मिलेगा because of its radioactivity. I hope आप लोगों को ये समझ में आया. Now, hydrogen, okay, has a special thing like this, that it will form a diatomic molecule which is stabilized due to duplet. Why this is special? Because all other elements in the periodic table, or all other elements which we find over there, will try to attain stability by having an octet, by fulfilling an octet. But hydrogen, helium, and as well as lithium, these are the three elements which will try to stabilize themselves by generally forming a duplet configuration, and as well as beryllium also. Hydrogen, helium, lithium, and as well as beryllium, okay, they will try to have a duplet configuration in order to make themselves stable, okay. So this is one thing due to which hydrogen exists as a diatomic
gas. Now obviously it should exist as a gas. Now sir, why is it existing as a gas? हम सबको पता है, number one, it is having such a small size, such a small mass, right? And weak van der Waals force of attraction. Okay, obviously hydrogen molecule के बीच there is no attraction force, there is no electronegativity difference, there is no polarity, there is nothing. So the only attraction force which will exist between them is the van der Waals force of attraction or the weak London dispersion forces, right? जिसके वजह से ये पक्का gaseous phase में ही exist करेगा. क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को सर यहां तक? Now, one more special thing about hydrogen which you will be seeing over here is this. Hydrogen forms compounds with almost many elements. Hydrogen क्या करता है सर? Almost all elements, just हम लोगों का ऑक्सीजन के जैसा ना, हाइड्रोजन भी लगभग सारे एलिमेंट्स के साथ, चाहे वो मेटल्स के साथ हाइड्राइड्स बनाए, राइट, या फिर वो जाके हमारे जितने भी नॉन मेटल्स के हैं उनके साथ एसिड्स बनाए, राइट, ये लगभग सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, leaving behind your platinum, gold and as well as your noble gases, उन्हें छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन भी कंपाउंड्स बनाता है. ठीक है. Now, one beautiful thing about hydrogen is this. Hydrogen can be used as a fuel due to its high calorific value. Hydrogen has got a high calorific value. Hydrogen has got a high calorific value can be used as a clean fuel. Can be used as a clean fuel. Why I'm calling it as clean fuel? See, if you burn hydrogen, if you combust hydrogen, what is the byproduct which we are getting? Water. Hydrogen, when it is burnt in presence of oxygen, forms water. That means, obvious, hydrogen is going to be a clean source of energy. And where will we abstract hydrogen from? Where will we get hydrogen from? Either you will do electrolysis of water, clean, or you will get it from the atmosphere, once again clean. So that is why we are saying hydrogen economy or a hydrogen fuel is going to be a little more greener and a cleaner source of energy. And the second thing which I told, the most important thing over here, hydrogen is having a very high calorific value, जो आप लोग लिखे होंगे अभी, right? Due to its high calorific value. Sir, what is the meaning of high calorific value? The amount of energy released when 1 kg of a fuel burnt is called as the calorific value of the fuel. The amount of energy released when 1 kg of a fuel is burnt is called as nothing but our calorific value. इसके अलावा भी हाइड्रोजन के न्यूमरस यूजेस हैं हमारे इंडस्ट्रीज में. ओके, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा एमोनिया प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर्स. हमारे पूरा वर्ल्ड में जितने भी फर्टिलाइजर्स चाहिए, नाइट्रोजन एमोनिया बेस्ड कंपाउंड्स चाहिए, उन सब जगह में एमोनिया प्रोडक्शन में हेबस प्रोसेस में हाइड्रोजन का सबसे बड़ा यूज होता है. क्या ये बात समझ में आ रहा है सर सबको? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस. जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को ये बता दिया दैट हाइड्रोजन इज नॉट प्लेस्ड एनीवेयर इन द पीरियोडिक टेबल. इट इज स्टिल अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, राइट? बिकॉज दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन हैज गॉट ड्यूअल बिहेवियर. इसमें ना स्प्लिट पर्सनैलिटी जैसा चीजें हैं, है ना? ये क्या करता है? It may react or it shows some reactions like the first group elements, and as well as it shows behavior as the 17th group elements. What is that as a first group element? ये क्या क्या behavior show करता है? Sir, hydrogen like the first group element can lose one electron and become positively charged. Hydrogen, just like our first group elements, can lose one electron and become positively charged. तो ये अपना मैक्सिमम कंपाउंड्स जो है H+ फॉर्म में ही बनाता है, जो कि हमारा ग्रुप 1 का
ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ये एग्जिस्ट कैसे करता है? H2 के जैसा करता है। नाउ H2 हमारे ग्रुप 1 का कोई भी मेंबर जो है डाई एटॉमिक बन के एग्जिस्ट नहीं करता है। ग्रुप 1 का कोई भी मेंबर जो है ये डाई एटॉमिक बन के एग्जिस्ट नहीं करता। लिथियम, सोडियम, ये सारे मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और ये पॉली एटॉमिक बन के एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे एटम्स टुगेदर मेटेलिक बॉन्ड बन के एग्जिस्ट करते हैं। बट हमारा हाइड्रोजन क्या कर रहा है? H2 बन के एग्जिस्ट कर रहा है। ये सारे के सारे हमारे ग्रुप 1 के लिथियम हो या फिर सोडियम, पोटेशियम, सब सॉलिड्स बन के एग्जिस्ट करते हैं। और ये कैसे एग्जिस्ट करता है? गैस बन के एग्जिस्ट करता है। अब डाई एटॉमिक गैस हमारे कौन से ग्रुप के मेंबर्स बनाते हैं? स्पेशली 17th ग्रुप के मेंबर्स बनाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग बनाते हैं। तो यहां से हम लोगों को बहुत क्लियरली ये पता चल रहा है कि सर, चलिए हमें ये तो समझ में आ गया कि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप में अच्छे से फिट नहीं बैठ रहा है, बिकॉज उसके पास जो है ये मेटल्स के जैसा सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज करने का कैपेसिटी छोड़ के और कोई कैपेसिटी है नहीं इसके पास। तो ये ना गैसियस, ये सॉलिड फॉर्म में ना एग्जिस्ट कर रहा है, ना ये पॉली एटॉमिक है, कुछ नहीं है, ये डायटोमिक है। ये H2 मतलब ये एक गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि 17th ग्रुप का प्रॉपर्टी है। आगे समझ में? और क्या है sir? Our hydrogen, just like any other 17th group element, also forms -1 oxidation state जब ये हाइड्राइड बनाता है। ओके, तो ये कौन सा स्टेट में एग्जिस्ट करता है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और हमें पता है 17th ग्रुप के सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जिनका की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -1 है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारा हाइड्रोजन के लिए ना फर्स्ट ग्रुप में कोई जगह है, ना 17th ग्रुप में कोई जगह है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज नॉट फिक्स्ड, राइट? चलिए, सो लेट अस मूव अहेड सर, लेट अस सी अगर टेक्स्ट बुक में कुछ भी हम लोग छोड़े हैं तो। Hydrogen is the first element in the periodic table. However, its placement in the periodic table has been a subject of discussion in the past. As you know by now that the elements in the periodic table are arranged according to their electronic configuration. Hydrogen has an electronic configuration 1s1. On one hand, the electronic configuration is similar to that of the outer electronic configuration of alkali metals, which belong to the first group. On the other hand, the halogens, okay, that is NS2NP5, okay, jinka 17th group hai, it is short by 1 electron to the corresponding noble gas configuration, that is helium 1s2. Hydrogen therefore has resemblance to alkali metals, which lose 1 electron to form unipositive ion, and also it show behavior just like our halogens, which will gain 1 electron in order to form a uni-negative ion, that is 1 - 1 ion. कोई problem नहीं है इसमें। आगे, like alkali metals, hydrogen forms oxides, halides and sulfides. ये एक चीज और है, राइट? हम लोगों का सोडियम सल्फाइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, ये जो बनता है उसी सेम तरीके का हम लोग का जो हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन क्या बोलते हैं हम लोगों का, हाइड्रोजन का बहुत सारे कंपाउंड जैसे कि हमारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स के जैसे ही ये भी बनाता है। क्या ये क्लियर है सर? कोई प्रॉब्लम है? ये जो कि हमारे 17 ग्रुप के एलिमेंट्स नहीं बना सकते, 17 ग्रुप वाले सल्फाइड्स नहीं बना सकते, बिकॉज वो खुद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। सो दैट इज द रीजन हाउ दे आर बिहेविंग एज ग्रुप 1 एलिमेंट्स। अब देखो क्या बोल रहा है, however unlike alkali metals it has very high ionization enthalpy. generally ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस है। alkali metals का ionization enthalpy बहुत ही लो होता है, because they lose 1 electron in order to become stable. But hydrogen का एकमात्र इलेक्ट्रॉन है, only 1 electron is left out, so that is why what happens is it becomes very difficult in order to lose this electron. क्या ये समझ में आ रहा है? That is the reason why, yes, that is the reason why we are saying that the ionization enthalpy of hydrogen is high and it is different from that of your alkali metals. This is a difference when you compare with that of your alkali metals. Next, and unlike alkali metals, sir, it does not, okay, have a look, possess metallic characteristics under normal conditions. Obviously metallic characteristics matlab kya?
सोनरस नहीं है, मिलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो गैस है, ये तो सॉलिड फेज में ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In fact, in terms of ionization enthalpy, hydrogen resembles more with halogens. क्या बात है, हाइड्रोजन का resemblance जो है ionization enthalpy के terms में अगर हम लोग देखेंगे, then it is going to resemble more with that of your halogens rather than your group 1 elements, that is your alkali metals. Example के तौर पे क्या दिया है देखो तो, ionization enthalpy of lithium 520 किलोजोल है, 520 नॉर्मल, फ्लोरीन का है 1680 और हाइड्रोजन का कितना है 1312, ऑलमोस्ट लिथियम का डबल, ओके, मोर देन डबल ऑफ लिथियम। सो ऑब्वियस सा केस है कि हाइड्रोजन का आयनेशन एंथैल्पी अगर कंपेयर करेंगे दैट विल बी कंपेरेबल टू विद दैट ऑफ योर 17 ग्रुप एलिमेंट्स, ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट शोइंग एनी रिजेम्बलेंस विद दैट ऑफ योर एल्कली मेटल्स। और एक चीज क्या पता चला हम लोगों को, हाइड्रोजन का और क्या चीज पता चला, ये कोई भी मेटेलिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लाइक हैलोजन, it forms a diatomic molecule, combines with elements to form hydrates and a large number of covalent compounds. However, in terms of reactivity, it is very low as compared to halogens. Okay, halogens काफी ज्यादा highly reactive है, but if you're comparing hydrogen, then it is going to be less reactive as compared to that of your halogens. So if you compare halogens, then this will be very less reactive. Give me a moment, sir. One moment. Yes, sir. So what did I say? It is less reactive as compared to your halogens. देखो अभी एक तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हाँ ये ना हेलोजेंस के जैसा बिहेव कर रहा है, इमीडिएटली पता चलता है कि हेलोजन का कुछ बिहेवियर शो नहीं करता है। हेलोजेंस कितना ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, बट हाइड्रोजन उतना रिएक्टिव नहीं है एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर 17 ग्रुप एलिमेंट्स। सो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस एंड दिस। सो देखो अभी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हाइड्रोजन to a certain extent resembles both with alkali metals and halogens, it differs from them as well. ओके जिन जिनको स्क्रीन क्लियरली नहीं दिख रहा है, आप लोग हॉरिजॉन्टल से आप लोग हॉरिजॉन्टल पे आ जाइए तो आप लोगों को स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखेगा, ठीक है। यस, it differs from them as well. Now the persistent question arises as where should it be placed in the periodic table? So loss of electron from hydrogen atom results in nucleus, that is your H plus formation में help करता है, right, which is of the size 1.5 into 10 to the power of minus 3 picometer. This is extremely small as compared to atomic and ionic sizes of 50 to 200 picometers. As a consequence, H plus does not exist freely and is always associated with other atoms or molecules. देखिए अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम लोग क्यों एसिड जब रिप्रेजेंट करते हैं, जब इसको आयोनाइज करते हैं तो हम लोग H3O+ लिखते हैं rather than H+, बिकॉज H+ अकेले एग्जिस्ट करना उतना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो किसी एटम के साथ अटैच होके या फिर कोई मॉलिक्यूल के साथ अटैच होके एग्जिस्ट करता है, राइट। नाउ thus it is unique in behavior and is therefore best placed separately in the periodic table. That is the reason why we are completely placing separately hydrogen atom, we are placing separately in the periodic table. चलिए अब आते हैं हम लोग हाइड्रोजन के अकरेंस में। आप लोगों को अब तक पता होगा कि सर मैंने अभी अभी बताया था द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन दिस यूनिवर्स, दैट मीन्स 70% ऑफ द यूनिवर्स, नॉट अर्थ, अर्थ तो छोड़ दो, यूनिवर्स के कंपेयर में अर्थ बहुत 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 छोटा है, 70% ऑफ द कॉम्पोजिशन जो है सिर्फ हाइड्रोजन के वजह से, ओके, राइट, एंड इज द प्रिंसिपल एलिमेंट, it is the principal element in the solar atmosphere, especially in our sun. The planets Jupiter and Saturn consider like nature, it is much less abundant. Now do you people know this?
these planets are made up of only dense gas. मतलब अगर मैं एक रॉकेट लेके चला जाऊंगा और मैं अगर इन जायंट गैस बॉल्स में लैंड करने की कोशिश करूंगा, देयर इज नो लैंड, देयर इज नो सॉलिड। तो दैट मींस मेरा रॉकेट अगर वहां पे ऐसे लैंड करने की कोशिश कर रहा है, वो सीधा नीचे चला जाएगा। और क्या होगा, जो कंप्रेशन, ये जो हेवी गैस के वजह से जो ह्यूज कंप्रेशन होगा, उसके वजह से कंप्रेस होके मेरा रॉकेट फट जाएगा, नहीं तो हम लोग भी क्रश होके मर जाएंगे। दैट मींस दीज ह्यूज जायंट गैस बॉल्स जो हैं, ओके, ये सिर्फ गैसेस है। दैट मींस हम लोग अगर रॉकेट ले जाएंगे, देखो तुम लोग सोच रहे होगे सर छोटा सा मार्स में क्यों लोग जाने की सोच रहे हैं, व्हाई नॉट वी आर गोइंग टू सैटर्न और जुपिटर, बिकॉज़ दे आर गैस बॉल्स एंड व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट गैस बॉल्स देयर इज नो लैंड। हम लोगों को लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, और वहां पे सिर्फ गैस है। और उसमें लैंड करने की कोशिश करेंगे, अगर उसके ग्रेविटी में अंदर जाएंगे हम लोग, वो गैसेस का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हम लोग कंप्रेस होते हैं, राइट? दैट इज व्हाट यू पीपल हैव टू नो। ओके, चलिए। How to, however, due to its light nature, hydrogen is very, very light, less mass, right? It is much less abundant, that is 0.15% by mass in the Earth's atmosphere. अब ये बताओ सर, लाइट नेचर के वजह से अर्थ में इसका कंसिस्टेंसी कम है 0.15%, क्या है इसके पीछे रीजन? लाइट एंड इसका एबंडेंस अर्थ में कम है, क्या है इसके पीछे रीजन? कौन बता सकता है मुझे? इफ इट इज लाइट, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, मास कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। You won't believe, there was a time when moon had atmosphere, moon had gases at a particular point of time, but as it slowly cooled down and जैसे जैसे उसका जो साइज जो है थोड़ा बहुत जब रिड्यूस हुआ, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो बहुत कम है, इसके वजह से सारे गैसेस जो है वो एस्केप कर गए। आ रहे समझ में? इन द सेम वे अर्थ के ऊपर भी जो हाइड्रोजन का कंटेंट कम अगर है, द गैस कंटेंट हाइड्रोजन कम अगर है, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर सैटर्न और जुपिटर और एनी अदर प्लैनेट। ओके, राइट। इसीलिए इसने लाइट नेचर को एबंडेंस के साथ यहाँ पे इसने कंपेयर किया। समझ में आया ये बात? नेक्स्ट, of course in the combined form it constitute 15.4% of the earth's crust. combined form में है because combined form में water थोड़ी ना gravity को escape करके चला जाएगा, नहीं जाता। so in the combined form it is present in the earth's crust, but H2, just H2 हमारे atmosphere में बहुत ही कम है, right? It is combined from in the combined form, besides in water, it occurs in plants, animal tissues, carbohydrates, proteins, hydrates, including hydrocarbons and many other things. चलिए, ये सब हम लोग को पता है। आइसोटोप्स के बारे में मैंने अभी डिस्कस कर लिया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम। Can you guess how these isotopes differ from each other? These isotopes differ from one another in respect of presence of neutrons. Protium में 0, deuterium में 1 and tritium में 3. Sorry, 2. Very good. Ordinary hydrogen, protium has no neutrons. Okay, done. 2 neutrons, done. In year 1934, an American scientist, Harold, got Nobel Prize for separating hydrogen isotope of mass number 2 by physical methods. Okay, ये सब हम लोगों को काम नहीं है। Next देखो, the predominant form of protium, terrestrial hydrogen, the other name for your protium is going to be terrestrial hydrogen, contains 0.0156% of deuterium. Okay, देखो, जो हाइड्रोजन हम लोगों को अवेलेबल रहता है अर्थ एटमॉस्फेयर पे, इसमें ड्यूटेरियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.0156%। तो मैं इसको स्पेशली प्रोटियम बोल सकता हूं कि नहीं? द टेरिशियल हाइड्रोजन ऑलमोस्ट कंटेन 99% ऑफ जस्ट प्रोटियम। ड्यूटेरियम सिर्फ 0.0156% रहता है एंड ट्रिशियम और भी कम रहता है बिकॉज वो रेडियो एक्टिव है। द ट्रिशियम कॉन्सेंट्रेशन इज अबाउट 1 एटम पर 10 to the power 18 एटम्स। 1 एटम इन 10 to the power of 18 एटम्स। मतलब अगर मैं पीपीएम के टर्म्स में भी बताऊंगा तो बहुत छोटा है, इतना कम है इसका कॉन्सेंट्रेशन। Of these isotopes, only tritium is radioactive and emits low energy beta minus particles. Now this is important. During the decay of tritium, the particle emitted is, or what type of decay does it undergo? Beta minus. चलिए लिखिए, ये एक important question आ सकता है। We know that tritium is radioactive.
we know that tritium is radioactive. So the particle tritium is going to emit during its disintegration, okay, is beta minus particles, and it is having what half life of 12.33 years. हाफ लाइफ जस्ट लिख लो, याद रहेगा नहीं रहेगा बाद की बात है. 12.33 years का हाफ लाइफ रहता है. इज दैट ओके? यस सर. चलिए तो फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. नाउ यू हैव अ लुक सर. Since the isotopes have same electronic configuration, they have almost the same chemical properties. We know this. हम लोग ऑर्गेनिक में भी बहुत बार देखे हैं, एंड एज वेल एज हम लोग अदर केमिकल प्रॉपर्टीज भी इससे पहले देखे हैं, अभी फिर से देखने वाले हैं. Whether it can be water H2O or it may be your heavy water that is D2O. ओके, वाटर जिस टाइप का कंपाउंड्स बनाता है, जिस टाइप का बिहेवियर करता है, शो करता है, सेम बिहेवियर हम लोगों का ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी करता है, मतलब ड्यूटेरियम D2O भी करता है, सेम टू सेम बिहेवियर. Now why is that? This is because both are having the same chemical properties. This is because both are having the same electronic configuration. क्योंकि हमारा chemical properties सिर्फ number of electrons पे डिपेंड करता है. So that is why protium and deuterium both have almost same chemical properties. Is that okay, sir? देखिए, ओके, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन छिपा हुआ है. द ओनली डिफरेंस इज इन देयर रेट्स ऑफ रिएक्शंस, मेनली ड्यू टू देयर डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन. ओके, तो क्या डिफर करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, तो अगर हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया, ओके, अगर हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया, राइट, एज the isotopes of hydrogen have the same electronic configuration, okay, they will have A, same chemical properties, B, will show same rate of reaction, C, will have same mass, D, will have same physical properties. Multiple options are correct. तुम्हें चूज करना है इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है. कौन सा गलत स्टेटमेंट है सर? They have same rate of reactions. बिल्कुल भी गलत है, because they have different rate of reactions, because they have different bond dissociation enthalpy. H bond dissociation enthalpy और D का bond dissociation enthalpy completely अलग है. तो ये समझेंगे हम लोग यहाँ पे. 1 मिनट के लिए हम लोग ये देख लेते हैं, तभी हम लोगों का डाउट क्लियर होगा, या हम लोग और अच्छे से समझेंगे. 1 मिनट के लिए आप लोग ये पीछे वाले टेबल में जरा ध्यान से देखिए. यहाँ पे देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ पे दिख रहा है, देखिए सर, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन. हाइड्रोजन जो है 435 किलो मींस किलोजोल पर मोल में ही डिसोसिएट हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है बॉन्ड एंथैल्पी. बट तुम्हारा ड्यूटेरियम के लिए कितना है? 443. तो इससे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? ड्यूटेरियम के लिए थोड़ा ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत पड़ेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ योर हाइड्रोजन. तो इससे क्या समझ में आ रहा है? रेट ऑफ द रिएक्शन नॉर्मल हाइड्रोजन का थोड़ा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ योर ड्यूटेरियम. ड्यूटेरियम विल बी अ लिटिल स्लोअर देन दैट ऑफ योर हाइड्रोजन और प्रोटियम. क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर. वेरी गुड. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, ध्यान रखेंगे. और हर चीज में तुम लोग देखो, चाहे वो रिलेटिव एटॉमिक मास हो, चाहे वो तुम लोगों का मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे वो तुम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे वो तुम लोगों का डेंसिटी हो, चाहे वो तुम लोगों का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो, या फिर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो. ओके, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है, इसे छोड़ के बाकी सारे पैरामीटर्स जो है ड्यूटेरियम का प्रोटियम से ज्यादा ही है. तो एक पॉइंट अगर हम लोग याद रखेंगे, सर, deuterium is going to have all the parameters. You talk about melting point, boiling point, you talk about enthalpy of vaporization, enthalpy of melting, anything you talk about, it is going to have a higher value. अगर एक स्टेटमेंट याद रखेंगे तो अगर हम लोगों को इसके रिलेटेड कुछ भी पूछा, हम लोग इमीडिएटली इसको आंसर कर सकते हैं. क्या ये समझ में आ रहा है? रेट ऑफ द रिएक्शन बस क्या होगा सर? ड्यूटेरियम का लो रहेगा, स्लो रहेगा, आपका प्रोटियम का, हाइड्रोजन का जो है हाई रहेगा, फास्टर रहेगा. चलिए
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए, नाउ वी विल गो फॉर द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। देखिए सर, मैं जब भी बोलूंगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइहाइड्रोजन, क्या आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये आता है? बताइए तो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन अ लिटिल एसिडिक मीडियम। सर, मैं अगर पानी ले लेता हूं, मैं अगर H2O ले लेता हूं with a little of acidic medium, okay, I'll add a little of H plus to it. What will happen, sir? H2O will immediately break, ionize into H plus and OH minus. Yes or no? तो Yes, sir. yes, तो आपके कैथोड के पास क्या हो जाएगा सर? इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम लोग, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। आपका कैथोड के पास क्या होगा? H प्लस जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन। बाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? एनोड के पास हम लोगों का OH माइनस जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये O2 बनाएगा, से फॉर एग्जाम्पल। That means one of the best preparation methods of your hydrogen gas is electrolysis of water in a little of acidic medium. Now अब तुम लोग बोलोगे सर, जब हम लोग ऑक्सीजन प्रिपेयर करते हैं, जब हम लोग नाइट्रोजन प्रिपेयर करते हैं, तो डायरेक्टली एयर से हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ एयर करके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लेते हैं, हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। हाइड्रोजन क्यों नहीं बनाते? तो आप लोगों को अच्छे से पता है, हाइड्रोजन का कंटेंट गैसियस फेज में कितना है? ना के बराबर है, 0.015% समथिंग देखे थे एटमॉस्फेयर में। हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर में कंटेंट बहुत ही कम है, तो एटमॉस्फेयर से लिक्विफाई करके हम लोग हाइड्रोजन को नहीं लाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस, चलिए सर, बहुत अच्छा बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियली हम लोग कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, या लैब में हम लोग कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? पहले लैब में देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंडस्ट्री में जाएंगे। लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड क्या आप लोगों को बहुत ही क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है? सर, हमें तो पता है, अगर कोई भी एसिड के साथ हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मेटल को रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मेटल को रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होगा। तो यही हमारा 2 इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड्स हो जाएंगे। टेक एनी स्ट्रॉन्ग मेटल, ट्रीट इट विद एन एसिड, इमीडिएटली हाइड्रोजन गैस विल बी डिस्प्लेस्ड। तो हम लोगों को पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हम लोगों को पता है रिडक्शन पोटेंशियल्स देख के, इफ आई एम ट्रीटिंग जिंक विद HCl, H2SO4 or anything like this, what will happen? Sir, zinc will immediately displace hydrogen and it will form H2 gas, and along with that your salt will be produced, so it will give salt and hydrogen gas. अब आप लोगों में से कोई अगर ये सोच रहा है, एग्जाम्पल्स लिखते लिखते जोश में आ जाएंगे, और अगर आप लोग लिख देंगे सर कोई भी एसिड के साथ तो जिंक ट्रीट करेंगे तो बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, तो आप लोग अगर लिख दिए जिंक प्लस HNO3 गिव्स राइज टू H2 गैस, तो खत्म, गोल हो जाओगे आप लोग। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक समझते हैं। HNO3 is very good oxidizing agent. ओके, नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और याद रखना, जिंक जो इलेक्ट्रॉन्स, जिंक जब हाइड्रोजन को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन से पहले कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन बोलेगा मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, मुझे चाहिए, मैं NO3 माइनस, मैं नाइट्रिक एसिड, मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मुझे दे दो, मुझे दे दो, तो वो ले लेगा। तो चलो हम लोग 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है? ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और सब लोग लिखेंगे, ठीक है? जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3 अगर आप लोग करोगे, जिंक प्लस HNO3 डाइल्यूट अगर आप लोग करोगे, ओके, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा? देखिए तो ध्यान से, HNO3 डाइल्यूट अगर हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग को प्रोड्यूस होगा जिंक नाइट्रेट, ये तो फिक्स्ड है, सॉल्ट ऑफ जिंक। इसके साथ साथ हम लोगों को क्या मिल जाए? डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड N2O मिलेगा। इसके साथ साथ क्या रिलीज होगा? वाटर रिलीज होगा। मतलब हाइड्रोजन अभी भी H प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ। क्यों? इसीलिए स्पेसिफिकली हम लोग नाइट्रिक एसिड का प्रॉपर्टीज अलग से पढ़ते हैं।
This is not like any other acid. This is a very good oxidizing agent. क्या ये रिएक्शन याद रहेगा? उसी तरह से जिंक अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट कर देंगे तो बेटा यहाँ पे आप लोगों का जिंक नाइट्रेट तो बनेगा, इसके साथ साथ NO2 बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, along with that इसके साथ वाटर बनेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन और भी ज्यादा रिड्यूस हुआ। देखिए मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेके मैं सोच रहा था चलो ठीक है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लूंगा तो शायद H+ मेरा H2 में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन अभी भी H2 नहीं बन रहा है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड के रहते हुए जिंक हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकता, वो नाइट्रिक एसिड को, नाइट्रेट आयन को ही रिड्यूस करेगा। क्या ये बात समझ में आया? तो कभी भी हम लोग ये गलती नहीं करेंगे, एसिड के साथ कोई भी स्ट्रॉन्ग मेटल को हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड को गलती से भी नहीं लेंगे। नाइट्रिक एसिड इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए तो हम लोग अगर ये समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नॉन मेटल सी, अगर हम लोग एक मेटल को बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाता है, इसको हम लोग सोडियम जिंकेट। प्लीज रिमेंबर दिस, सोडियम जिंकेट। जनरली हम लोगों के दिमाग में क्या रहता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग एग्जाम के जल्दीबाजी में हम लोग क्या सोचेंगे, जिंक प्लस NaOH जो है Na+ और OH- बन जाएगा, जिंक OH को ले जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, ऐसे लगेगा। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पता चलेगा जिंक कहाँ सोडियम कहाँ। क्या जिंक सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली वहां पे आप लोगों का जिंक हाइड्रोक्साइड बनने का कोई चांस नहीं है। रैदर क्या हो जाएगा सर, आपका जो जिंक है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, हाइड्रोजन H+ है, उसको डिस्प्लेस करके Na2ZnO2 बना देगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। सो दीज आर द लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ आवर हाइड्रोजन गैस। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूं। ओके, चलिए चलते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड में, जिसका पहला मेथड मैंने ऑलरेडी बता दिया, फ्रॉम वाटर बाय एसिडिक इलेक्ट्रोलिसिस, एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। अब अगर मुझे हाईली प्योर वाटर चाहिए, हाइड्रोजन गैस चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड जो कि याद रखोगे। हाई प्योरिटी का हाइड्रोजन गैस अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, आई हैव टू इलेक्ट्रोलाइज warm aqueous barium hydroxide solution. Okay, I can take barium hydroxide solution, BaOH2 solution, warm aqueous barium hydroxide solution. If I take this and if I pass electricity, immediately I will be getting hydrogen gas as the only gas. यहाँ पे हाई प्यूरिटी का कैसे मिल रहा है ये हमारे दिमाग में आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है सर, हाइड्रोजन गैस इज द ओनली गैसियस प्रोडक्ट जो वहां से निकलेगा, बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो सॉलिड फेज में या फिर तुम्हारे इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे।
इसीलिए यहाँ पे हाई प्योरिटी का हाइड्रोजन गैस जो है हम लोगों को प्रोड्यूस हो रहा है। तो हाई प्योरिटी हाइड्रोजन गैस हमें कहां से मिलेगा? बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग warm aqueous barium hydroxide solution, by electrolyzing warm aqueous barium hydroxide solution. चलिए, next, what other methods do we have? Sir, let us see. It is obtained as a byproduct in the manufacture of sodium hydroxide and chlorine by the electrolysis of brine solution. Yes, हमें पता है ये। ओके, वही अगर ओशन वाटर या सॉल्ट वाटर हम लोग ले लेते हैं तो उसमें भी हम लोगों को हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। एज अ बाई प्रोडक्ट हम लोगों को वहां क्लोरीन गैस भी मिलता है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सोल्यूशन के अंदर मिल जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्या है हम लोगों का एक और मेथड, रिएक्शन ऑफ स्टीम विथ हाइड्रोकार्बन्स। क्या आप लोगों को याद आ रहा है हाइड्रोकार्बन्स के साथ स्टीम H2O हाई टेम्परेचर के साथ अगर हम लोग पास करेंगे, हम लोगों को क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ या कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा और दूसरे तरफ जो है हम लोगों को वाटर मिलेगा, राइट? सो यू कैन हीट और पास स्टीम अलोंग विथ योर हाइड्रोकार्बन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए, any hydrocarbon when treated with your steam produces कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, यहाँ पे बड़ा मजेदार चीज है, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कंबस्टेबल है, हाइड्रोजन गैस कंबस्टेबल है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी कंबशन को सपोर्ट करता है, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है। आ रहे समझ में? तो इस तरीके से जो है ये जो मिक्सचर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। The composition of water gas is carbon monoxide along with hydrogen. How is it produced? बोलने से, it is produced when steam is passed through. When steam is passed through our hydrocarbons. Very good. As this mixture of carbon monoxide and hydrogen is used for synthesis of methanol and a number of hydrocarbons, it is also called as the synthesis gas or the syngas. तो देखिए, syngas water gas सेम है, याद रखिए इस बात को। syngas या फिर water gas सेम है, that is carbon monoxide plus hydrogen gas. So as it is used for the synthesis of number of hydrocarbons, that is why we are calling it as nothing but syngas. चलिए, बहुत अच्छा बात। आगे बढ़ते हैं सर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। Nowadays, syngas is produced from sewage, sawdust, scrap wood, newspapers. The process of producing syngas from coal is called as coal gasification. देखिए सर, हम लोग कोल को डायरेक्ट बर्न कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा हम लोगों को? डस्ट, स्मोक, ये सारी चीजें प्रोड्यूस होंगे। बट वही अगर कोल गैसिफिकेशन करते हैं तो क्या होगा? सॉलिड कोल के ऊपर से स्टीम पास कर दिया, जो गैस निकला, जो सिन गैस या वाटर गैस हम लोगों का रिलीज हो रहा है, उसको हम लोग सिलेंडर्स में फिल करके भेज देंगे, और जो प्रोडक्ट बच गया, जो सॉलिड वेस्ट बच गया, उसको डिस्पोज करेंगे, राइट? एटमॉस्फेयर में तो छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स इन लोगों के, कोल का, इसका उसका, डस्ट पार्टिकल्स तो गए नहीं। यस और नो? हम लोग अगर डायरेक्टली बर्न करेंगे तो बहुत सारे एशेस एंड अदर थिंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर थिंग्स विल डायरेक्टली गेट इनटू द एटमॉस्फेयर। बट अगर हम लोग कोल गैसिफिकेशन करते हैं तो ये थोड़ा बहुत क्लीनर है एज कंपेयर टू डायरेक्टली बर्निंग योर कोल। चलिए, नेक्स्ट, the production of dihydrogen can be increased by reacting carbon monoxide of syngas mixture with steam in the presence of iron chromate as catalyst. ये एक important सा आप लोगों का क्वेश्चन है सर, ये पूरा पैराग्राफ। What is water gas shift reaction? How is carbon dioxide removed? That is by scrubbing it with sodium arsenide solution. ये पूरा का पूरा पैराग्राफ क्वेश्चन है आपका नीट के लिए, राइट? सो देखिए क्या बोल रहा है ये, द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिनगैस मिक्सचर विथ स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज द कैटलिस्ट। आयरन क्रोमेट के प्रेजेंस में जो ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू पास करके जो हम लोगों का कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन निकला, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा हाइड्रोजन का कंटेंट निकले
तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग स्टीम के साथ रिएक्ट करते वक्त कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, जो कि है आपका आयरन क्रोमेट। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. एंड दिस इज कॉल्ड एज नथिंग बट द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हम लोगों का, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, मुझे हाइड्रोजन चाहिए सर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसको स्क्रब कर देंगे सोडियम आर्सेनाइड सोल्यूशन के साथ। जो मिला मुझे गैस, उसको सोडियम आर्सेनाइड सोल्यूशन के थ्रू पंप कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगा और तुम्हारा सिर्फ प्योर हाइड्रोजन गैस जो है वो गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, सोडियम आर्सेनाइड क्या है, सोडियम आर्सेनाइड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। कार्बन शिफ्ट आयरन क्रोमेट को यूज करके किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, स्टीम के प्रेजेंस में। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। Presently 77% of the industrial dihydrogen is produced from petrochemicals, where डीजल, गैसोलीन, क्रूड ऑयल, वहां से हाइड्रोजन गैस निकलता है। नेक्स्ट नेचुरल गैस वहां से। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 18% फ्रॉम कोल, 4% फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस एंड 1% फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब कुछ कुछ रिएक्शंस में जो बाय प्रोडक्ट्स के फॉर्म में आता है। चलो छोड़ो इसको, गोली मारो। अब आगे आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। बताइए फिजिकल प्रॉपर्टीज हम सबको पता है, क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन का? इट इज अ कलरलेस गैस, यस और नो? Odorless, no smell, and tasteless, obviously. But it is a combustible gas, highly combustible with high calorific value. It is lighter than air and insoluble in water. ये तो बढ़िया चीज है. It is lighter than air. Okay, so you can use it in your hot air balloons and you can use it in other purposes, weather balloons and other things. If you want to go for high altitudes, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को सर, इसका इतना कम मास है, इसके वजह से जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर जो है वो काफी कम रहता है, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट्स अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, इनसॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोजन वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता है, ओके, क्योंकि ना इसको बहुत कम टेम्परेचर्स चाहिए, ओके, इसको डिसॉल्व होने के लिए या फिर इसको लिक्विड फेज में जाने के लिए बहुत लो टेम्परेचर्स चाहिए, इसीलिए। नेक्स्ट, इट्स अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर मेंशन्ड, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख लिए, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी, सब प्रोटियम ड्यूटेरियम को कंपेयर किया था, वहीं पे मेंशन कर दिया गया है। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को बहुत ही क्लियरली अभी तक पता है सर, हाइड्रोजन ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, मेटल्स के साथ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और ये एक हाइड्राइड बनाता है। नॉन मेटल्स के साथ भी हाइड्राइड बनाता है, लेकिन उसको हम लोग एक्चुअली H+1 हाइड्राइड बुलाना नहीं चाहिए, हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव होना चाहिए, बट स्टिल हम लोग कॉमनली उसको हाइड्राइड्स बुला लेते हैं। एक्चुअली HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, हाइड्राइड नहीं बोलते हैं, येट हाइड्राइड्स इसका कंपाउंड्स का। तो ये कोई भी एलिमेंट के साथ गोल्ड प्लैटिनम को छोड़ के और नोबल गैसेस को छोड़ के ये रिएक्शन कर सकता है। तो ये जो हाइड्राइड्स बनाता है ना सर, ये 3 डिफरेंट टाइप के हाइड्राइड्स होते हैं। आयोनिक हाइड्राइड हो सकता है, कोवेलेंट हाइड्राइड हो सकता है, सॉरी 2 टाइप के होते हैं, आयोनिक हाइड्राइड हो सकता है, कोवेलेंट हाइड्राइड हो सकता है। इनको हम लोग और भी वेज में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएट हाइड्राइड्स एंड इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड्स में हम लोग इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनका जो है प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके, एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं, राइट। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा अभी, केमिकल प्रॉपर्टीज का एंड तक पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद तुम लोगों को टाइम दे दूंगा जहां तक पढ़ाया वहां तक अच्छे से पूरा पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ के याद कर लेने के लिए। जिस दिन का उस दिन याद कर लीजिए, जैसे जैसे हम लोग खत्म कर देंगे आप लोगों का इनऑर्गेनिक भी खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन जैसे ही खत्म करेंगे, हाइड्रोजन का क्वेश्चंस देख लेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस देख लेंगे,
तो देखो इनऑर्गेनिक ऐसा चीज है, इसमें घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा डाटा पता है, मतलब उस प्रॉपर्टी पता है तो क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चंस पढ़ लेंगे मतलब उसी में से बार बार क्वेश्चंस आएंगे हम लोगों के, ठीक है। एक भी एनसीईआरटी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, राइट राइट। चलिए, the chemical behavior of dihydrogen and for that matter any molecule is determined to a large extent by bond dissociation enthalpy. Bond dissociation enthalpy एक बहुत important सा role play करता है। The HH bond dissociation enthalpy is the highest for a single bond between two atoms of any element. This is what you people can remember. हाइड्रोजन single bond का जो bond strength है, this is highest as compared to any single bond. कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन सल्फर सल्फर, फास्फोरस फास्फोरस, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड, कोई भी सिंगल बॉन्ड कंसिडर कर लोगे, उनमें से सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी जो है किसका है सर? वो हमारा हाइड्रोजन का है, H2 का है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन प्रूव हो सकता है हम लोगों के लिए। विच अमॉन्ग दीज हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड और द सिग्मा बॉन्ड, दैट इज H2, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। What inferences would you draw from this fact? It is because of this factor that the dissociation of dihydrogen into its atoms is only 0.081%. मतलब H2 को हाइड्रोजन एटम्स में डिसोसिएट करना बहुत 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 मुश्किल है, राइट। Around 2000 Kelvin, which increases to into its atoms is only 0.081% around 2000 Kelvin, which increases to 95.95% at 5000 Kelvin. सोचो 5000 केल्विन मींस अराउंड 4700 डिग्री सेल्सियस। 4700 डिग्री सेल्सियस मींस थिंक अबाउट द हाई टेम्परेचर जहां पे हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होगा, जो कि हाईली इम्पॉसिबल है, स्पेशली ऑन द अर्थ सरफेस तो पॉसिबल नहीं है। बट यही चीज सोचो आप लोग कि हम लोग कोई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड ट्रीट कर दे रहे हैं, तो नेसेंट बच्चा हाइड्रोजन रिलीज हो जा रहा है विदाउट दैट हाई टेम्परेचर। समझ रहे हो, एटॉमिक हाइड्रोजन वहां रिलीज हो जा रहा है, बट सच में अगर हम लोग H2 मॉलिक्यूल को तोड़ के बनाना चाहेंगे तो कितना ज्यादा टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा, राइट, क्लियर। ऑल्सो इट इज रिलेटिवली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू द हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ऑब्वियस सा बात है, ड्यू टू द हाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी। तो नाइट्रोजन के जैसा हाइड्रोजन भी रूम टेम्परेचर पे इनर्ट है। सर यही तो रीजन था जब बीच में people thought that we can use hydrogen in the hot air balloons, और हमारा जो एयर बलून्स है हम लोग चीप ट्रैवल के लिए हम लोग हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं करके लोगों ने ट्राई किया, हाइड्रोजन और हीलियम का एक मिक्सचर बना के यूज करके लोगों ने बनाया। बट एक बार क्या हुआ, एक बिग हैजर्ड, किसी को अगर याद है तो समवेयर नियर डेनमार्क या कहीं पे ये हैजर्ड हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जर्मनी में शायद हुआ था। The balloon was traveling with almost 200 something people in it, a huge one, एक बड़ा होटल बनाए थे वो लोग उसके अंदर ही, और it was taking a flight from one place to the other. Suddenly एक thunderstorm में क्या हुआ, एक थंडर के वजह से पूरा का पूरा बलून इन्फ्लेट हो गया, मतलब पूरा का पूरा फट गया, एक्सप्लोड हो गया। Why? Because hydrogen is combustible, right? तो उस दिन से उस आइडिया को दोबारा यूज नहीं किया गया, or else people thought that it will be used for transportation, but later on people ने use नहीं किया उसको। That was a very big tragedy, बहुत बड़ा disaster जो उस टाइम पे हुआ था, एक ही बार में 200 लोग मर गए, right? Now thus the atomic hydrogen is produced at a high temperature in an electric arc or under ultraviolet radiations। अब आप लोग बताइए, बार बार हम लोग ना अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के बारे में सुनते हैं, हाँ, तुम लोग Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू करके, यूवी रेज करके, कभी आप लोगों ने सोचा इसके बारे में? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस मतलब बहुत छोटा वेवलेंथ, बहुत छोटा वेवलेंथ मतलब एनर्जी क्या होगा, बहुत हाई, समझ रहे हो ना? हाँ, ऐसा नहीं कि यूवी रेस के प्रेजेंस में हो रहा है मतलब वो ऐसे ही हो रहा है, इसीलिए तो यूवी रेस को हम लोग अगर ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे तो कैंसर ये सब होने की चांसेस है, स्किन बर्न, है ना? क्यों? क्योंकि यूवी रेस अभी प्रेजेंटली हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम एंटर करता है, बिकॉज हमारा एटमॉस्फेयर बहुत कुछ स्क्रीन कर लेता है, ओजोन लेयर स्क्रीन कर लेता है यूवी रेस को, बट अगर ज्यादा यूवी रेस अगर ये करेंगे तो कैंसर के
जो चांसेस है ह्यूमन जो स्किन कैंसर के चांसेस है बहुत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Since its orbital is incomplete with 1s1 electronic configuration, it does combine with almost all elements. ये already बोल चुके हैं, it combines with almost all elements. It accomplishes reaction by loss of one electron, gain of one electron, और by sharing electron. तीनों कर सकता है ये। ओके चलिए अब हम लोगों को आ गया रिएक्शन विद हैलोजेंस। अब सबसे पहले मुझे कौन बताएगा सर, एक हैलोजन के सामने हाइड्रोजन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +1, माइनस तो शो नहीं कर सकता। सो हैलोजन -1 शो करेगा और हाइड्रोजन +1। तो ये किस टाइप का हैलाइड बनाएंगे? HX टाइप का हैलाइड बनाएंगे। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? हाइड्रोजन आयोडाइड। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? हाइड्रोजन आयोडाइड। और इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लार्ज साइज ऑफ आयोडीन के वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ही लो हो जाता है, जिसके वजह से आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। राइट तो क्या ये समझ में आया सर? Yes. Okay. Yes, sir. Okay. It reacts with halogens in order to form your halides, where hydrogen will show positive oxidation state, whereas your halogen will show negative oxidation state. And now moving ahead, if we and we discussed one more thing about the acidic strength. टॉप टू बॉटम जो है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है। मतलब मैं अगर हैलोजेंस का बात करूंगा तो HF, HCl, HBr, HI, तो HI सबसे ज्यादा एसिडिक है। टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि साइज जो है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। Right. Now let us see reaction with dioxygen. Now you tell me sir, ऑक्सीजन को अगर मैं ट्रीट करता हूं मेरा हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पक्का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। हाइड्रोजन उस केस में क्या करेगा? सिंपली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो अगर हम लोग अभी क्रिस क्रॉस करेंगे तो सिंपली हम लोग का क्या आ जाएगा? H2। सो ये रिएक्शन दो फिजिबल है, गिब्स फ्री एनर्जी इसके लिए नेगेटिव है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सब कुछ है। बट नॉर्मल टेम्परेचर्स में ये रिएक्शन को करना बहुत ही मुश्किल है। एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड तोड़ना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड तोड़ना है। इन सबको तोड़ के तब जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होके वाटर बनेगा। तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगा। इसीलिए इसको एक साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। अब देखो ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं दे सकते, क्योंकि हाइड्रोजन भी कंबस्टिबल गैस है, ऑक्सीजन भी कंबस्टिबल गैस है, दोनों के दोनों पता चला दोनों बर्न हो गए। इसीलिए वाटर प्रोड्यूस करते वक्त हम लोगों को एक साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देना पड़ता है, ऐसे कि वो कंबस्ट ना हो जाए, वो बर्न ना हो जाए, लेकिन वाटर प्रोड्यूस हो जाए। मतलब उनका ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, वो हम लोगों को मिल जाए, वो हम लोगों को मिल जाए। क्या ये समझ में आया सर? वेरी गुड, बहुत अच्छा बात सर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन देखते हैं। ये तो हमें पता है दैट इज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएक्शन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएक्शन, दैट इज योर हेबर्स प्रोसेस। नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एमोनिया। मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज एमोनिया एक ऐसा इंडस्ट्रियल केमिकल है जो कि बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज होता है, not only in the fertilizer industries, and there are many other organic compound industries and many other industries where we can use this ammonia. तो हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है एमोनिया के प्रिपरेशन मेथड में। चलिए इसको हम लोग हेबर्स प्रोसेस में बनाते हैं। हम लोगों को पता है ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है एमोनिया का प्रोडक्शन। तो ली चैटलियस प्रिंसिपल से हम लोगों को ये भी पता है कि हमें हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? पोटेशियम ऑक्साइड
iron oxide along with aluminum oxide, that is your Al2O3. चलिए आगे बढ़ते हैं सर, रिएक्शन विथ मेटल्स देखते हैं। सर कोई भी मेटल हो, ओके, ग्रुप 1 ग्रुप 2 का मेटल, उसके कंपेयर में तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो कोई भी मेटल के साथ हाइड्रोजन क्या शो करेगा, तुम्हारा हाइड्रोजन शो करेगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और तुम्हारा मेटल शो करेगा +1 +2, उसके वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। उसका अगर +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो रहा है तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो रहा है तो +3। उस हिसाब से हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे तो हम लोगों को MH, MH2, MH3 इस टाइप के हाइड्रेट्स हम लोगों को मिल जाएंगे। क्या ये समझ में आया? हाँ सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए हाँ, लास्ट 2 पैराग्राफ्स फॉर टुडे, ओके, एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स इट। यहां तक बताऊंगा, इसके बाद कल हम लोग बाकी सब चीज जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, रिएक्शन विद मेटल आयंस। हाइड्रोजन को कोई भी हम लोगों का ट्रांजिशन या फिर हेवी मेटल्स के आयंस के साथ अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तो क्या होगा सर, हाइड्रोजन जो है उनको रिड्यूस कर पाएगा। ध्यान दीजिए, सिल्वर, कॉपर, ट्रांजिशन मेटल्स, है ना, ये हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है हमारे रिडक्शन पोटेंशियल के चार्ट में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारा हाइड्रोजन के ऊपर आता है हम लोगों का सिल्वर, कॉपर, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है। तो उनको अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ, उनके आयंस को अगर हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे, हाइड्रोजन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू देम, उनको रिड्यूस कर सकता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे, पैलाडियम विथ हाइड्रोजन गैस इज गिविंग पैलाडियम सॉलिड along with 2H plus is releasing. In the same way, कोई भी हेवी मेटल का ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे तो मेटल प्रोड्यूस हो जाएगा और वहां से तुम लोगों का वाटर रिलीज हो जाएगा। क्यों? हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ओवर हियर। हाइड्रोजन खुद इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा उन मेटल आयंस को। वो बोलेगा भाई तू ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो तू तो मेरे ऊपर है, मतलब मैं तेरा से ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट हूँ, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हूँ, तो मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो ले और निकल यहाँ से, साइड हट जा, मैं ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ये किसके ऑक्साइड्स के साथ? हेवी मेटल ऑक्साइड्स के साथ, जो कि हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज। क्लियर है सर ये बात? यस सर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमें पता है ना सर, हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, एल्कीन्स को एल्काइंस को एल्केन्स में कन्वर्ट करना, यस और नो, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल तक लाना, एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करके अल्कोहल तक लाना, कीटोन को रिड्यूस करके सेकेंडरी अल्कोहल में लाना। हर जगह तो हाइड्रोजन ही तो रिएक्ट कर रहा है, राइट? सो इन दीज प्लेसेस वी विल हैव आवर रिएक्शन विद हाइड्रोजन। यहाँ पे आप लोगों को ये नाम सुनने को मिलेगा, ओलेफिन्स सुनने को मिलेगा। एल्कीन्स आर अदरवाइज कॉल्ड एज नथिंग बट योर ओलेफिन्स। तो यहाँ पे वही हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जो कि सिंपल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। हाइड्रोफॉर्मिलेशन, ये रिएक्शन याद रखिए, स्टार मार्क इंपॉर्टेंट। हाइड्रोफॉर्मिलेशन ऑफ ओलेफिन्स, डबल बॉन्ड्स का हाइड्रोफॉर्मिलेशन, मतलब एल्डिहाइड बनाने का तरीका, इसको हम लोग हाइड्रोफॉर्मिलेशन बोलते हैं। ठीक है सर? चलिए, ये था रिएक्शन विद दैट ऑफ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड फाइनली कम्स डाउन टू योर यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। अभी अभी बता दिए सर, ये रॉकेट फ्यूल में यूज होता है बहुत ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए। हाइड्रोजन हम लोग एज इट इज अ वेरी लाइटर गैस, हम लोग इसको बहुत सारे जगह पे यूज कर सकते हैं। वेदर बैलून्स में या किसी चीज में हम लोगों को अगर हाई एल्टीट्यूड में कोई बैलून को भेजना है, उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन को एमोनिया के प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल में यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। वेल्डिंग पर्पजेस में हाइड्रोजन यूज होता है कुछ स्पेसिफिक केसेस में। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका हाई कैलोरी वैल्यू के वजह से, राइट? सो हाइड्रोजन के साथ और भी बहुत सारे यूजेस हैं। वाटर गैस हो गया, सिन गैस हो गया, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन का यूजेस कर रहे हैं। सो ये सारे जो हैं आप लोगों के यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। यहां तक आप लोग अच्छे से आज पूरा टॉप टू बॉटम, लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड पढ़ लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, शाम को नहीं तो कल हम लोग जो है हाइड्राइड स्टार्ट करेंगे, जहां पे मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन
प्रिसाइज हाइड्राइड्स जो है पढ़ेंगे और उनका पूरा प्रॉपर्टीज देखेंगे एक एक करके, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस क्लास. सो किसी को कुछ प्रॉब्लम है सर, बताइए जरा. नो सर. लेकिन जितना पढ़ाया अच्छे से पूरा लाइन बाय लाइन यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेंगे तो शाम में सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, फिर उसके बाद हाइड्राइड्स जो है मैं आगे पढ़ाऊंगा. देखिए सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. क्यों पता है? क्योंकि ना हम लोग को बहुत कुछ ऑलरेडी आता है. मुझे उतना डीपली कुछ ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा. बहुत कुछ है जो आप लोगों को डायरेक्टली पता है, राइट? तो रिएक्शंस को भी हम लोग लिख लिख के याद कर लेंगे. ठीक है, चलिए, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास. चलिए, बाय.